پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پی ایف اکیڈمی نثار پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا مارکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ پاک فضائی نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی تقریب میں شرکت۔ تقریب کے اختتام پر پاک فضائیہ کے جہازوں کی سلامی، شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ۔ ایران اور امریکہ کو دوبارہ میز پر بٹھانے کی کوششیں تیز، ثالثوں کے پس پردہ رابطے، مذاکرات کا دوسرا دور جلد متوقع۔ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کی ملاقات کے لیے ممکنہ تاریخوں اور مقامات پر غور جاری۔ حکام تنازع کے سفارتی حل کے لیے پر امید۔ سی این این کی رپورٹ، تہران 5 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی معطل کرنے پر تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، بلومبرگ کے مطابق بات چیت کا دوسرا دور جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے بھی خبروں کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ ایران کو یورینیم افزودگی کی صلاحیت مکمل ختم کرنا ہوگی۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کے ساتھ جوہری مواد بھی ملک سے باہر بھیجنا ہوگا۔ بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا انحصار تہران پر ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ مصالحت کے لیے شاندار کردار پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ کہا دونوں شخصیات نے حقیقی اور مدبرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ طویل عرصے کے بعد ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پاکستان کی کوششوں سے ہی ممکن ہوئی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی، خطے میں پھر کشیدگی، ٹرمپ کی خلاف ورزی پر جہاز تباہ کرنے کی وارننگ۔ کوئی بھی ملک گزرگاہ بند کر کے دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ بہت سے ممالک ناکہ بندی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایران سے بہت سے نکات پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ تہران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی اور مذاکرات کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ، اس سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا صرف مکمل جنگ بندی ہی صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہے۔ چین مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کرے گا، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف بھی 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ روس یوکرین جنگ، مشرق وسطی کی صورتحال اور 2 طرفہ امور پر بات چیت متوقع۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 4000 پوائنٹس کا اضافہ، 4 حدیں بحال، 1,64,683 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، جنوبی کوریا، جاپان، ہانگ کانگ اور شنگھائی مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں $100 سے نیچے آ چکی ہیں۔ امریکی آئل 96 اور برنٹ کروڈ $97 فی بیرل میں فروخت۔ وفاقی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف پروگرام کی نئی قسط کی منظوری جلد ہونے کی نوید سنا دی۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں مختلف اہم ملاقاتیں، میڈیا سے گفتگو میں کہا فی الحال آئی ایم ایف کے پروگرام میں اضافے یا تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ معاشی صورتحال میں کمزوری آئی ایم ایف سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کہا $3 ارب قرض واپسی کے یو اے ای کے مطالبے کے بعد دباؤ بڑھا۔ چین اور سعودی عرب سے ممکنہ مالی مدد کی خبروں پر تبصرے سے گریز۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی صدارت میں این ایچ اے پنجاب ریجن کا اجلاس، جاری منصوبوں پر بریفنگ، اہم فیصلوں کی منظوری، رنگ روڈ سے پھول نگر M5 ہائی وے کی ری ڈیزائننگ اور بہتری کا جائزہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا جی ٹی روڈ سے خاطر خواہ ریونیو حاصل ہو رہا ہے، سہولیات بھی دیں، تمام یو ٹرن عالمی معیار کے مطابق بنانے، پیدل گزرنے اور موٹر بائکس والوں کے لیے پل بنانے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر کے لینڈ ایکوزیشن پر بچت کے احکامات۔
FBR के गोदामों से सिगरेट के हजारों कार्टन की चोरी का मामला, जांच करने वाली कमेटी के चेयरमैन को FBR की जानिब से हिरासा किए जाने का इंकशाफ। सैफुल्लाह अबड़ो ने बताया कि कमेटी के बाद घर जाता हूं तो FBR का नोटिस मिल जाता है, मगर डरने वाला नहीं, मेरा टोबैको का कारोबार नहीं। कमेटी रुकन उमर फारूक ने कहा, स्मगलिंग में कस्टम्स अमले मुलव्विस हैं। ईरान से तेल स्मगल करने वाले अपनी वीडियो भी बनाते हैं, मगर कस्टम्स वालों को स्मगलिंग नजर नहीं आती। लाहौर में दरियाए रावी पर 40 किलोमीटर तवील बंद की तामीर, रूजा का मंसूबा तेजी से जारी। CEO इमरान अमीन का सिटी एम्बैंकमेंट और पार्क व्यू एम्बैंकमेंट समेत मुख्तलिफ पैकेजेस का दौरा, काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। CEO पार्क व्यू सिटी जुनेद अमीन और MPA शुएब सिद्दीकी भी हमरा थे। तर्जुमान के मुताबिक दरिया की चौड़ाई 1 किलोमीटर रखी जाएगी। मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रैले आसानी से गुजर सकेंगे। शहरी इलाकों को भी महफूज बनाया जा सकेगा। ईरान और अमेरिका को दोबारा मेज पर बिठाने की कोशिशें तेज, सालसों के पसे पर्दा राब्ते जारी। वाशिंगटन में ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की चामगोइयां। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर के मुताबिक अमरीकी सदर ईरानी वफ्द से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए मुमकिना तारीखों और मकामात पर गौर जारी है। CNN की रिपोर्ट। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल खत्म करना होगी। बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हिसार तेहरान पर है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। मुसालिहत के लिए शानदार किरदार पर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़यादत का मुजाहिरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी समंदरों का घेराव, अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान से बहुत से नकात पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। आबनाए हुर्मुज़ और बुहैरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, दौरान ट्रेडिंग 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 4 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 4092 पॉइंट्स बढ़कर 1,64,683 पॉइंट्स पर आ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की $96 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में सोना $23 महंगा, फी ऑन्स कीमत $4765 हो गई। UAE के $3.5 अरब कर्ज की जगह मुतबादल के लिए तमाम ऑप्शन जेर गौर हैं। पाकिस्तान $250 मिलियन का पहला पांडा बॉन्ड अगले माह जारी करेगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे समेत अहम मुलाकातें। इक्तसादी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। विफाकी वजीर मुवासलात की जेर सदारत NHA पंजाब रीजन का इजलास। मुख्तलिफ जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। अहम फैसलों की मंजूरी। रिंग रोड से फूल नगर M5 हाईवे की रीडिजाइनिंग और बेहतरी का जायजा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, GT रोड से खातिर खा रेवेन्यू हासिल हो रहा है, सहूलियात भी दी। तमाम यू टर्न आलमी मयार के मुताबिक बनाए। पैदल गुजरने और मोटर बाइक्स वालों के लिए पुल बनाने की हिदायत। विफाकी वजीर के लैंड एक्विजिशन पर बचत के अहकामात। मसावी तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहर हर गांव की सड़क बनना जरूरी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। रोड प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बरवक्त और मयारी तामीर की हिदायत। मुल्तान बिहाड़ी रोड सूबे की पहली डस्ट फ्री सड़क करार। और दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से रिकॉर्ड। आलूदगी बढ़ जाने से फिजा का मयार नाकिस हो गया। ईरान और अमेरिका को दोबारा मेज पर बिठाने की कोशिशें तेज, सालसों के पसे पर्दा राब्ते जारी। वाशिंगटन में ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की चमगोइयां। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं,
अमरीकी सदर ईरानी वफ्द से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकते हैं। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए मुमकिना तारीख और मकामात पर गौर जारी है। CNN की रिपोर्ट। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल खत्म करना होगी। बातचीत के दूसरे राउंड का इन्हिसार तेहरान पर है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। मसालहत के लिए शानदार किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़ियादत का मुजाहरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुए। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरानी समंदरों का घेराव, अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी। डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। कहा, ईरान से बहुत से नकात पर समझौता हो चुका था, यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक न हो सका। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक अमेरिका पहले भी खाली हाथ भागा था, अब भी ऐसा ही होगा। आबना हुर्मुज़ और बुहीरा ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम होगी। अमेरिका और ईरान का सीज फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम इस्लामाबाद मुज़ाकरात के समराज जाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक। पोल का किरदार जारी रखने का आज़म। मुस्तकिल अमन के लिए सफारती कोशिशें तेज करने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पहली बार अमेरिकी और ईरानी वफूद एक साथ बैठे। दोनों ममालिक में बिलावास्ता बातचीत हुई। ऐसी इज्जत तारीख में किसी को मिलती है। दुनिया ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल के फरासत और हिकमत से सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। जिम्मेदारी है कि कौमी राज ही रहे। काबीना अरकान का वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुसालहाती कोशिशों को खराज तहसीन करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म को कैनेडियन हम मनसब का फोन। अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुबारकबाद। मियां शहबाज शरीफ का कशीदगी में कमी और जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तानी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की जानिब बामानी पेशरफ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मार्क कार्नी ने पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को सराहा। वज़ीर आज़म से जापानी हम मनसब की टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर हुई तफसीली बातचीत। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत। आबना हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने कहा, आबना हुर्मुज़ को लाहा खतरे से आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। और बैसाखी का त्यौहार बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत। पाकिस्तान में सिख और हिंदू बिरादरी समेत तमाम अक़लियतों को बुनियादी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सदर मुमलिकत का पैगाम। आसिफ जरदारी की त्यौहार पर मुबारकबाद। अमन, खुशहाली और हम आहंगी बरकरार रखने की दुआ।